I really want to welcome you all in SP Smart Hybrids schooling system. So, welcome everyone in your mega classes. Today, I will be helping you out in understanding more about the paper, and we will be solving one of the paper that was there for the final board examination for class 12th from 2024 to 2025. Let me give you an overview of the paper. But if you talk about your final English paper, it is of 80 marks, right? The total weightage of your paper would be 80 marks. You will be getting 3 hours to complete your paper. See, your paper has been divided into 3 sections: section A, section B, and section C. Section A is there for 20 marks, section B is there for 30 marks, and same goes with section C as it is of 30 marks. Section A is typically your reading comprehension, right? Section B is all about your writing skills, and section C is all about the literature part. But as a subject teacher, this is my suggestion to you all. If you go with my words, I really want you people to start up with section C. After completion of section C, you must go with section B, and at the end try to finish off section A. It's a strategy which was implemented by me when I was a student and I was in class 12th, and it's a tried and tested method, and definitely I had a very positive results from the given strategy. Else, I'm not forcing anyone to start the paper from section C only. It's totally your cup of tea. If you really want to go with section A, you can, but I have an example why I'm telling you to start from section CC. In the preparatory holidays or in the in between holidays, we are going to, good evening, we are going to prepare only section C, right? We are going to prepare the chapters, we are going to read the chapters thoroughly, and we are also going to prepare the textual question answers. And apart from textual question answers, definitely we are going to cover all the important questions. So we will be having a good hold over our section C. After section C, if we talk about formats and writing skills, definitely we are going to practice formats, and we have practice for entire year. So it is also one of the things, though the question would be coming from anywhere, right? But the basic, the grassroots would be the same, right? And at the end, as you know, section A is being further bifurcated into 2 questions. One question is of note making and summary writing, and next one is that after reading the given paragraph, you need to answer the asked questions. So in order to make a very good and positive impression on the examiner, start with the things that you know in a very perfect way. And section C, I think section C is the thing that you will be preparing in a perfect manner, in perfection. After this, start up with section B, and at the end try to finish off section A. One more important thing is there, beta, that I really want to talk about. See, if you start your paper from section C and you do stanza based question, that would be coming from the poetry part, and after that you believe that after completion of that particular question you will be moving to advertisements from section B. Better, the switching between the question is inappropriate. You are going to get no marks for the same. If you talk about English paper, you need to start up with the particular section. I'm repeating it again. You have to start with a particular section, and after completing that particular section, you need to move to another section. You can't interchange question, but yes, you can go with the interchanging of the full section itself. Is it clear? Okay. Yes, sir. Next important thing, as per my directions, you must be able to complete your English paper within 2 hours and 40 to 45 minutes, and 15 minutes you will be keeping as a buffer for editing, because definitely it would be quite difficult to move with the editing in one go.
rather you will manage paper in a way so that you would be able to complete your English paper within 40 to 45 minutes, so that you will be left with 15 minutes that would be kept as buffer to go with the editing part again if you are facing any trouble in the same. Is it clear? Okay. Yes, sir. So beta, now we are going to have a quick discussion about the paper, and I would like to start with section C. So coming down the section C, as I have already told you, the section C would be based on your literature part and is of 30 marks. So let's discuss the very first question. The very first question of section C will be a stanza based question. See, if you talk about your book, that is your textbook, only 5 poems are there, and stanza can be asked from any of the poems. Here the stanza says, driving from my parents' home to Cochin last Friday Excuse morning. me, sir. Yes, beta. So screen is not visible. Beta, is my screen visible to everyone? No, sir. No, sir. Okay. No worries. Just working on the screen. Is my screen visible? I think there is some technical issue. Is Yes, my sir. screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are there with the section C. In section C, we are discussing the stanza based question, in which it is being said that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realizing with pain that she was as old as she looked. So this stanza is being taken from the very first poem of your textbook, that is Flamingo, and the name of the poem is My Mother at Mother at 66. 66. My mother at 66. May I ask you, with the poet of the same, the poet is Kamla Das. Kamla Das. Right. Kamla Das. So let's discuss the very first question from the stanza. The first question says, whose mother is described as in the extract, and why does she doze with open mouth? There is a word which is being used in the given question, that is doze. Doze क्या होता है? Doze का मतलब होता है सोना, sleeping. आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको मुंह खोल के सोने की आदत होती है. Have you seen those people? So Yes, sir. ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें किसकी माँ है जो मुंह खोल के सो रही है? तो बेटा वो पोइट की मदर है, और पोइट की मदर इस पोम में 66 की है, जो कि अपना मुंह खोल के शी इज टेकिंग ए नैप, शी इज स्लीपिंग. दैट शोज दैट शी हैज टर्न्ड ओल्ड, एंड यूजुअली ओल्ड पीपल कीप देयर माउथ ओपन टू ओवरकम ब्रीदिंग प्रॉब्लम. कभी कभी हमारा नाक बंद होता है तो हम कैसे सोते हैं? मुंह से सांस लेके सोते हैं ना, उसको गैस्पिंग कहते हैं, है ना? तो बेसिकली शी इज डूइंग गैस्पिंग व्हाइल स्लीपिंग. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Let's Yes, sir. come to another question. Another question says, give an example of simile from the extract. तो बेटा सिमली का जो एग्जाम्पल है, सिमली क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं एज के साथ या लाइक के साथ. तो सिमली है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. तो यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है, दैट इज कॉर्प्स. कॉर्प्स का क्या मतलब होता है? कॉर्प्स का मतलब Dead होता है body. very Dead body. It means dead body. Clear है बेटा जी? Okay. Yes, sir. So we Yes, sir. are going to another question. Another question says, why is the poet pained to look at her mother? मतलब पोइट ने जब देखा कि उसकी माँ जो है वो मुंह खोल के सो रही है और उसकी झलक उसकी आंखों के सामने आई, तो वो क्यों मायूस होगी? पेंट का मतलब वो क्यों दुखी होगी, मायूस होगी, राइट? द पोइट इज पेन्ड एट द एजिंग. वो क्यों मायूस होगी? क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जो माँ है वो बूढ़ी होगी, वो ईयर बाय ईयर ओल्ड होती जा रही है. और जो पोइट का बचपन का एक थी, दर्द था जो उसके दिल में था कि
शी विल बी लूजिंग हर मदर वन डे, तो वो उसको सोच रही कि मे बी शी माइट नॉट एबल टू सी हर मदर अगेन एज शी इज टर्निंग old, so that is why she has compared her old mother with ashen and corpse like face. Clear है बच्चे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And the last question says, name the poem and the poet. The poem is My Mother at 66 and the name of the poetess is Kamala Das. So is there any problem with stanza based question? This question will be coming for 4 marks. You need to answer 4 questions and each question will comprise of 1 mark. The total would be 4 marks. Clear hai bachche? Yes, yes, Okay. sir. So now short answer type questions will also come from poem itself. See, your poem will be coming for 10 marks, and how these 10 marks are bifurcated, they are being further bifurcated as in 4 plus 6. 4 question is being kept for stanza based questions and 6 marks will be there for short answer type question that would be coming from poems itself. Clear hai bachche? Yes, sir. Okay. So in the short answer type question you have a privilege of doing any 2 out of 3. You will be getting 3 questions and you will be having a privilege of completing any 2 from the given 3 questions. The very first question says, what will counting up to 12 and keep going help us to achieve? तो इसमें पाब्लो नेरूडा कहते हैं कि क्यों वो हमें 12 तक काउंट करना चाहिए और इससे हम क्या अचीव करेंगे, 12 तक काउंट करके चुप रह के हम क्या अचीव करेंगे. सो द आंसर इज, जब सभी 12 तक काउंट करेंगे और चुप रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे. वो जब अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे तो सॉल्यूशंस उनके दिमाग में आएंगे. दे विल बी गेटिंग द सॉल्यूशंस फॉर हाउ दे कैन रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स एंड दे कैन मेक देयर लाइफ मोर स्मूथ एंड इफेक्टिव. अगर सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आजकल यू कैन सी इन द न्यूज ऑल अराउंड कि हर कोई कंट्री एक दूसरे पे अटैक कर रही है. रिसेंटली आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ यूएसए एंड वेनेजुएला, राइट? इवन रशिया इज हैविंग अ वॉर विद यूक्रेन. देयर इज अ चांस ऑफ ए वॉर बिटवीन चाइना एंड ताइवान टू, राइट? सो पीपल आर यूजिंग एक्सप्लोजिव्स, दे आर यूजिंग वेपन्स, सो वी आर लूजिंग ब्रदरहुड. तो यहाँ पे पाब्लो नेरूडा कहते हैं कि जब हम 12 तक गिनेंगे और क्वाइट रहेंगे, चुप रहेंगे, तो हम एक तो अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे और उससे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएंगे. और सेकंड पॉइंट ये है कि इससे हम वेपन यूज करना बंद करेंगे, अपनी आर्म्स यूज करना बंद करेंगे. वी आर गोइंग टू लिव इन ब्रदरहुड with everyone and we will be encouraging non-violence across the world, which will be helping us to be humans and we will be working for the holistic survival of humanity. Clear है बच्चे? Yes, sir. Okay. सो बेटा अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द पोम सेज, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग विद रेफरेंस टू द पोम ए थिंग ऑफ ब्यूटी. मतलब कि किस तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हम इंसानों की लाइफ में एक होप भर देती है, डिस्पाइट के हमारी लाइफ में कितना भी ट्रबल है, कितनी भी सफरिंग्स है. सो बेटा यहाँ पे पोएट कहता है कि देयर आर मैनी थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रबल बनाते हैं, है ना. हम में से हर कोई इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं लाइफ को लेके सफ़र कर रहा है. मगर इतने ग्रीव्स हमारी लाइफ के होने के बावजूद भी हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ये जैसे मैरीगोल्ड हैं, जैसे कोल्ड ब्रीज हैं, ब्रुक्स हैं, ब्रुक्स क्या होते हैं, रिवर्स हैं, और जो नेचुरल ब्यूटी है, इन सभी को देख के हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए
ताकि हम अपनी लाइफ में जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी ग्रीव्स हैं, जितने भी सॉरोज हैं, उनको कीप असाइड रखें. वी नीड टू कीप देम असाइड सो दैट वी कैन लिव आवर हैप्पीली, जॉयफुली एंड विदाउट एनी वरीज. तो ये चीजें कौन हेल्प करती हैं? ये चीजें थिंक ऑफ ब्यूटी हेल्प करती हैं. इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Are you sir. understanding what we are discussing in today's class? Yes, Yes, sir. sir. Okay. The third question that is Yes, there, sir. the third question says, what was the plea of the folks who had put up the roadside stand? यहाँ पे एक word use हुआ है plea. Plea का क्या मतलब होता है? Plea means request, है ना? जो लोग रोड साइड स्टैंड में थे, है ना, folk मतलब people, उनकी क्या रिक्वेस्ट थी? बेटा वो गरीब लोग थे, देवर पॉवर्टी रिडन पीपल. दे ओनली वांटेड कि जितने भी सिटी डेवलपर्स हैं, सिटी डेवलपर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि सिटी से हो सकता है कंट्री साइड मूव कर रहे हैं, है ना. जितने भी सिटी डेवलपर्स हैं, whenever they are having a eye over these roadside stands, वो जब भी इन रोड साइड स्टैंड्स को देखें, they must apply brakes, they must get out of their cars, they must see what items roadside stand people who have opened the roadside stand have kept for sales. They must choose, they must pick, they must purchase, and for that they must exchange money so the flow of money can happen, and these people should also get anything for their survival, because without money there is no survival. Clear hai beta ji? Yes, sir. Okay. So we are going to discuss question number 9th in total of section C. In question number 9th, now we will be discussing the short answer type questions that needs to be answered in 30 to 40 words. Beta, keep one thing in your mind. The long answer type questions will come from Vistas only, and short answer type questions will come from Flamingo. Is it clear? Okay. Yes, sir. In this type of question, you will be getting 5 in total, and you need to answer any 3 out of 5. Clear hai bachche? Is it clear? Yes, Yes, sir. Okay. So the very first question says, what did France notice that was unusual about the school that day in the last lesson? See, this question has been taken from last lesson. ये क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस था उसने क्या नोटिस किया कि उस दिन जो चीज़ें स्कूल में हो रही थी वो बहुत ही अलग थी, वो यूजुअल नहीं थी, यानी कि वो ऐसी चीज़ें नहीं थी जो कि रोज़ देखने को मिलती थी, वो बहुत ही अलग चीज़ें थी. तो बेटा फ्रांस जब बुलेटिन बोर्ड पे देखता है तो लास्ट 2 ईयर्स से जितनी भी बैड न्यूज़ हैं वो बुलेटिन बोर्ड पे आती हैं, वहाँ से वो पास करता है, मगर वो बुलेटिन बोर्ड को नहीं देखता है. तो उसको एक कॉबलर, शू कॉबलर जो है वो उसको एक स्कार्ट बहुत ही एक टॉन्टिंग वे में कहता है कि डोंट वरी, अगर तुम आज स्कूल में लेट भी हो जाओगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. तो जैसे ही फ्रांस जो है वो स्कूल में पहुंचता है, वो देखता है कि आज स्कूल में तो बिल्कुल स्टिलनेस है, देयर इज़ नो नॉइज़. ऐसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बेल रिंग कर रही होती है, बच्चों का शोर हो रहा होता है, टेबल डेस्क की आवाज़ें आ रही होती हैं, बट आज फ्रांस को ऐसा कुछ नहीं ऑब्जर्व होता. राइट. वो अपनी क्लास में एंटर करता है और एंटर करते ही वो देखता है कि लास्ट डेस्क में जो विलेजर्स हैं वो भी बैठे होते हैं. एम हेमल ने एक मतलब कि ड्रेस पहना होता है जिसमें उसने फ्लोरी शर्ट पहनी होती है, कोट पहना होता है, हैट पहनी होती है, और ये ड्रेसेस एम हेमल जो कि उनके फ्रेंच टीचर हैं वो उसी दिन पहना करते हैं जिस दिन कोई चीज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज होती है, इन एनी स्पेशल ऑफ द इवेंट. और फ्रांस को पता चलता है कि दिस इज़ द लास्ट डे व्हेन मिस्टर हैमल इज़ टेकिंग केयर ऑफ फ्रेंच एज इन लेक्चर, एज इन क्लास. तो ये बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो उस दिन अपने स्कूल में देखते हैं. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Okay. The next question says, what is Sahib looking for in the garbage dump? Is he happy working at the tea stall? Why not? तो बेटा साहिब का क्या नाम था? साहिब आलम. So what do you mean by साहिब आलम? पहले मुझे ये बताओ.
King of the world. Yes. Lord of Lord the of universe. universe. Lord of the Yes. universe, king of the world. Very good. Very nice. Keep up the good spirit. I hope you are going to do wonders this time in your class. 12th English final board examination. ओके ओके. सो बेटा साहेब, आपको पता है कि एक रैट पिकर होता है, वो बांग्लादेश से आया होता है, सीमापुरी में रहता है. अब वो गार्बेज डंप में क्या ढूंढता है? वो ढूंढता है कि उसे कोई 10 रुपी का नोट मिल जाए या कोई कॉइन मिल जाए, इवन कि उसे कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए. अब एंड में चैप्टर में था कि साहिब एक टी स्टॉल में काम करना शुरू करता है. साहिब बिल्कुल भी खुश नहीं होता. क्यों खुश नहीं होता? क्योंकि नाउ ही इज वर्किंग समवन, अंडर समवन, किसी के अंदर काम कर. ही इज नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक हिज डिसीजन प्रोफेशनली. जब वो रैक पिकिंग करता है तो वो अपने हिसाब से काम करता है. मन किया काम किया, मन किया काम छोड़ दिया. बट नाउ चाहे उसका मूड है, चाहे ही हैज नो मूड, he needs to work as he is working the owner of the tea stall. Clear है बच्चे? And he is no longer his own master. Okay. One more thing, the answers which is being jotted down in the PDF, they all are the reference answer. I hope you were there in my 11th class as well, right? So these are the reference answers. You need to understand the chapter and you need to write the answers as per your own creativity. Is it clear everyone? Yes, Yes. sir. Yes. So Lord Spring का जो ये क्वेश्चन था साहेब वाला, इसमें किसी को do you have any doubt in it? No, sir. Okay. Now we are going to discuss question number 3rd. The question number 3rd says, why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? क्यों लगता है? क्यों लगता है कि चंपारण मूवमेंट जो था वो गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था? इसलिए लगता है क्योंकि बेटा यहाँ पे गांधी जी ने एक मेजर रोल प्ले किया था, जिनमें गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स को चाहे 100% नहीं, चाहे 50% नहीं, बट 25% उनका पैसा जो उन्होंने लैंडलॉर्ड को दिया था वो वापस दिलाया था. इस विक्ट्री से एक चीज ये रिफ्लेक्ट हो गई थी कि इंडिया अपनी लैंड में किसी और के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा. अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये टीच किया था, दे कांट मेक देयर ओन लॉज और दे कांट बी रूड विद इंडियंस इन देयर ओन कंट्री. और इस जो चंपारण मूवमेंट थी, इससे ये पता लगा था कि जितने भी इंडियंस हैं वो आपस में यूनाइटेडली हैं, और गांधी जी को जो पीजेंट्स थे चंपारण के, उन्होंने यूनाइटेडली सपोर्ट किया था. एंड अल्टीमेटली इट वाज द फर्स्ट विन ऑफ इंडियन ओवर ब्रिटिश राज. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are going to discuss D question. D question says, how does Douglas overcome his fear of water? अब डगलस ने जो उसका पानी को लेके डर था वो कैसे भगाया? पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाई ही वाज अफ्रेड ऑफ वाटर. पहला इंसिडेंट जो कि कैलिफोर्निया बीच में हुआ था, राइट? जब वो बीच हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए गया था, वो बीच के अंदर चला गया था और उसके फादर जो थे उसको हंस रहे थे, एंड ही फेल्ट वेरी डिमोटिवेटेड. वो फर्स्ट इंसिडेंट था जिसकी वजह से डगलस ने अपनी लाइफ में पानी से डरना शुरू किया था. बट उसने इसको ओवरकम करने के लिए YMCA में स्विमिंग पूल स्विमिंग लर्न करना शुरू किया. बट एक दिन क्या हुआ बेटा, डगलस टाइम से पहले YMCA पूल में पहुंच गया था और वहाँ पे एक बुली आया था, ही वॉज ए टीनेजर, और उसने इसको पकड़ के पानी में फेंका था और ये बहुत मुश्किल से बचा था, जिसकी वजह से इसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी और उसको फोबिया हो गया था. मगर इस फोबिया को फाइट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए डगलस ने क्या किया? डगलस ने इस फोबिया को ओवरकम करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो उसको स्विमिंग लेसन देता था, ठीक है? और इसने क्लासेस कब से कब तक ली? इसने अक्टूबर से अप्रैल तक ये क्लासेस ली, जिसमें अलग अलग जो स्टाइल थे स्विमिंग के, जैसे फ्री स्टाइल होता है, बैक स्ट्रोक्स होता है, इंस्ट्रक्टर ने सब सिखाया. इंस्ट्रक्टर ने इवन की इसको बताया कि किस तरह से स्विम करते वक्त सांस ली जाती है और सांस छोड़ी जाती है, यानी कि ब्रीथिंग टेक्निक्स में भी उसने काम किया.
अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग टेक्निक्स, अब फोबिया के कारण क्या हो गया था, डगलस की जो लेग्स थी वो मूव नहीं करती थी, और स्विमिंग तो बिना लेग मूवमेंट की होती ही नहीं है, एंड द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम इन लेग मूवमेंट टू। ठीक है, उसके बाद जो ये डगलस था उसने लेक वेंट माउथ में, वार्म लेक में स्विम किया, और ही कॉन्कर्ड हिज फेयर ऑफ वाटर कंप्लीटली। मगर इसमें ये भी आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिस करवा रहा था डगलस को, तो उसको बेल्ट से टाई करके रखता था अगेंस्ट द वेव, सो दैट जो डगलस है वो ड्राउन ना हो। ड्राउन मतलब डूबेगा। क्लियर है बच्चे? Yes. Okay. So Yes, now sir. we are going to discuss the next question. The next question says, what did Sophie dream and fantasize of? Why does Gen Z discourage her from having such unrealistic dream? अब सोफी और जेंजी ये दोनों गोइंग प्लेसेस की हैं। सोफी इज दी मेन कैरेक्टर। ये दोनों पॉवर्टी रिडन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट सोफी जो है वो ड्रीम करती है और जेंजी जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब सोफी क्या ड्रीम करती हो, क्या सोच रही होती, वो इमेजिन कर रही होती कि यार मैं तो अपनी खुद की बुटीक खोलूंगी, राइट, और बुटीक के साथ साथ मैं अपना एक्टिंग करियर शुरू करूंगी। आई वांट टू बी एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस को तो पूरा दिन काम नहीं होता है, और जो मेरा स्पेयर टाइम होगा उसमें आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई बुटीक, एंड माई बुटीक वुड बी दी वन ऑफ द बिगेस्ट बुटीक इन द टाउन। अब जेंजी इसको डिस्करेज क्यों करती है? क्योंकि जेंजी इज ए पर्सन हु लिव्स इन रियलिटी। वो कहती है कि वी वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, और तेरे पापा जो हैं we are poverty ridden, your father won't allow you to leave the job, right, and to fulfill your dream। कहते हैं अगर तू पैसा कमाएगी तो एक काम करना, सबसे पहले बाय ए गुड हाउस फॉर योर फैमिली टू लिव इन। और कहते हैं कि दिस इज ऑल अनरियलिस्टिक, दीज आर ड्रीम्स, यू शुडंट run after dreams, moreover you must be practical and you must do things as per your situation। क्लियर है बच्चे? इसमें Yes, किसी को कोई sir. डाउट? No, sir. Okay, so we are done with short answer type questions, and now we are moving ahead with long answer type questions। Okay, the very first question is being taken from the third level. The question says, what does the third level refer, and do you think third level was a medium of escape for Charlie, and in what respect? तो थर्ड लेवल क्या करता है बेटा? बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो ही लेवल्स होते हैं, ये सबको पता है। चार्ली एक लड़का है जो कि जॉब कर रहा होता है, और वो एक दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है और वो ऊपर मूव करता है, और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे टनल होती है। वो उस टनल के अंदर जाने का, कॉरिडोर के अंदर जाने का डिसीजन लेता है, और वहाँ से वो राइट मुड़ता है, और वो सामने देखता है कि उसके सामने जो सीन है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे जो ट्रेन्स के जो डब्बे हैं वो छोटे हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो अलग तरह से ड्रेसअप हैं, लोगों ने हैट्स पहनी हैं, वहाँ पे एक टिकट बूथ है, और वो ट्रेन जो है वो गेल्सबर्ग पे जा रही है जो इलिनॉइस में है, राइट। तो वहाँ पे जाके जब वो बूथ पे जाता है और टिकट को कहता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए गेल्सबर्ग के लिए, और वो जब पैसे एक्सचेंज करता है, यानी पैसे उसको पेमेंट करने लगता है, तो जो टिकट कलेक्टर है वो उसको बहुत ही स्ट्रेंजली देखता है। वो स्ट्रेंजली इसलिए देखता है क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली उसे बेवकूफ़ बना रहा है, बिकॉज द मनी विच ही वॉज गिविंग, द कैश विच ही वॉज गिविंग, इट वॉज नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम जोन, वो दूसरे टाइम जोन का होता है। तो वो समझ जाता है, वो कहता है कि मैं शैल आई कॉल द कॉप्स, वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से एस्केप कर देता है। मगर वो उसके बाद जितनी भी ट्राइज करता है वो थर्ड लेवल पे नहीं पहुँच पाता। सो इन दिस यू विल बी एक्सप्लेनिंग these things in the very first part। अब yes, third level was a medium of escape for Charlie। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें ये बताया गया चैप्टर में कि चार्ली बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वरीज हैं, वो फियर में है, वो इनसिक्योर है, वो कन्फर्म करता है, मतलब वो स्ट्रेस में रहता है, वो एक बहुत ही अनप्लेजेंट लाइफ जी रहा है, और इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहता है।
क्यों? क्योंकि जो गेल्सबर्ग है वो पुराने टाइम जोन का है और वहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, वहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसके लिए वो अपने एक साइकेट्रिक फ्रेंड को भी बताता है इस इंसिडेंट के बारे में, मगर जो उसका साइकेट्रिक फ्रेंड है वो उसको मना कर देता है और ये कहता है कि यू आर सीइंग ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इसका मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखना। तो कहता है कि तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। तो इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। सो इसके और में एक और क्वेश्चन आया बेटा। बेसिकली देयर वुड बी 2 लॉन्ग आंसर टाइप एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ इट, और उसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी ऑन द फेस ऑफ इट से आएगा, राइट? Now we will be discussing second optional question from the first question. The question says, describe the dilemma that Dr. Sadao faced with the wounded young white American soldier. How did he resolve his predicament finally as you go through the story? मतलब कि वो क्यों डिलेमा में था, वो किस चीज़ के डिलेमा में था? डॉक्टर सडाओ ने जब देखा कि उसके बालकोनी से दिखता है कि कोई मतलब कि ब्लैक शेडो है, ब्लैक यू नो समवन इज देयर इन द बीच, वो भाग के जाता है और उसके पीछे हैना जो उसकी वाइफ है वो भी भाग के जाती है, और जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं एक इंसान जो है उसका मुंह सैंड की तरफ होता है और वो लेटा होता है और उसको माउंड होता है, उसको सीधा करता है और वो एक वाइट मैन होता है और उसकी कैप के ऊपर लिखा होता है यूएस नेवी। अब उस टाइम पे क्या हुआ था बेटा, जापान और यूएस की वॉर चल रही थी और डॉक्टर सडाओ जो थे वो एक की पर्सन थे जापान के, क्योंकि उन्हें वॉर पे नहीं भेजा गया था, उन्हें अपनी कंट्री में ही जापान में ही रखा गया था, और इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका जो जनरल था वो बीमार था एंड ही वॉज द पर्सन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट जनरल, ठीक है? मगर जब ये देखते हैं कि टॉम जो अमेरिकन था, उसका नाम था टॉम जो अमेरिकन है उसके सामने लेटा है और वो देखता है कि उसको गन शॉट हुई है, ठीक है? वो डिलेमा में फंस जाता है कि उसको बचाए या ना बचाए। वो एक पहले सोचता है कि और हैना से ये डिस्कस करता है कि वो इसको दोबारा से ओशन में फेंक देगा, मगर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डॉक्टर वो उसको रियलाइज़ कराती है कि वो इसको ओशन में नहीं फेंकेगा, मोर ओवर वो इसको ट्रीट करेगा। तो वहाँ से वो उसको अपने घर पे लेके जाते हैं। अपने घर में जब इसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसका जो फादर का जो नाउ ही इज़ डेड, जो सडाओ का फादर है वो मर गया होता है, उसके रूम में रखते हैं, वहाँ पे इसको रखते हैं। ये बहुत ही गंदा सा होता है, तो वहाँ पे पानी गर्म करते हैं। तो हिना को कहता है कि इसको नहलाना पड़ेगा अगर इसको हमने ट्रीट करना है तो हिना कहती है इसको कौन नहलाएगा? तो कहती है कि ठीक है। हिना कहती है कि मैं यूमी को बुलाती हूँ। कहते कि हम सर्वेंट को बता दें? तो कहता है हाँ सर्वेंट को बताना चाहिए, यूमी को बोलो कि इसको नहला दें। अब जब हैना जाती है वहाँ पे सर्वेंट्स को बताती है तो सर्वेंट्स बहुत ही अफेंडेड होते हैं। वो जापानीज़ होते हैं, जापान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपनी एनिमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन विच इज़ बीइंग टेकन बाय डॉक्टर सडाओ। और कहते हैं कि अब डॉक्टर सडाओ तो इसका इलाज कर रहे हैं, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो खुद भी फंसेंगे और हमें भी फंसा देंगे। तो यूमी जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है। फिर डॉक्टर हैना इसको नहलाती है, ठीक है, इसके माउंट को साफ़ करती है। और सडाओ कहता है कि इसको किसने माउंट साफ़ किया? तो हैना कहते कि मैंने। और वो अपने सर्जिकल इक्विपमेंट्स और अपना कोट पहन के आया होता है। तो हैना कहती है कि आर यू गोइंग टू परफॉर्म एन सर्जरी ऑन हिम? तो कहते हैं येस आई एम गोइंग टू परफॉर्म ए सर्जरी ऑन हिम बिकॉज आई रियली वांट टू सेव हिम। अगर मैं इसका बुलेट नहीं निकालूंगा, इफ आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म दी सर्जरी ऑन हिम, ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो इस तरह से उसको बचाते हैं। बट नाउ इसका जो सर्वाइवल है, टॉम का सर्वाइवल है, ये इनको डेंजर जोन में ले आता है, राइट? अब क्या होता है, ये जर्नल के पास जाता है, जर्नल को बताता है कि ऐसे ऐसे अमेरिकन मेरे घर पर है। तो जर्नल कहता है यू डोंट नीड टू वरी, मैं कुछ सीरियल किलर्स को जानता हूँ और किलर्स को मैं घर पे भेजूंगा। यू नीड टू डू वन थिंग, आपने अपना बैल्कनी का दरवाज़ा खुला रखना है, दे विल कम और वो इसको मार देंगे। तो ये कहता है ठीक है। रात को वेट कर रहा होता है, बाहर हवा चल रही होती है, आवाज़ होती है, इसको लगता है कि वो सीरियल
जो किलर्स हैं वो आ गए हैं, और अगले दिन जाता है, वो टॉम को देखता है, टॉम ठीक होता है। फिर अगले दिन रात को वेट करता है, फिर अगले दिन उसको लगता है कि जो किलर्स हैं वो आ गए हैं, बट वो नहीं आए होते, ठीक है, और वो देखता है कि टॉम ठीक है। फिर टॉम को कहता है कि नाउ यू आर डेंजर टू अस, आई वांट टू सेव माय फैमिली। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बोट ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं कुछ तुम्हें कपड़े ला के दूंगा, तो सामने आइलैंड है, तुम वहाँ पे चले जाओ, तुम्हें उस आइलैंड से जो कोरियन बोट्स हैं वो मिलेंगी, और वहाँ से तुम यूएस जा सकते हो। तो इस तरह से ये टॉम को जो शिप है बोट अरेंज करके देखता है, और टॉम को वहाँ से एस्केप करवाता है, और अपनी फैमिली को फाइनली वो सेव कर देता है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. बेटा, is it clear to you? Yes, sir. Okay, Yes, Yes, sir. very good. So we are going to discuss the next question from on the face of it. The question says, how does Derry get into Mr. Lamb's garden, and what it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? तो बेटा यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं, डेरी और मिस्टर लैम्ब। इन दोनों के अराउंड ही ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है। बेसिकली डेरी का क्या है, डेरी का मुंह जला हुआ है, राइट, उसे कोई पसंद नहीं करता है, और मिस्टर लैम्ब जो है उनका एक जो लिम्ब है वो उन्होंने लूज कर दिया था ड्यूरिंग द वॉर। अब क्या होता है, डेरी एक दिन ना दीवार कूद के किसी के गार्डन में चले जाता है। उसे लगता है कि इस गार्डन में कोई नहीं है, इस घर में कोई नहीं रहता है, और मुझे कोई नहीं देखेगा। हालांकि वो परेशान हो गया होता है लोगों से, लोगों की टॉन्ट सुन सुन के, अपने लिए बैड कमेंट सुन सुन के, जो भी उसको देखता है उससे दूर भागता है। इवन कि जो फीमेल्स हैं वो कभी देखती हैं और वो कहते हैं कि इस चेहरे को कौन प्यार करेगा, नो वन इज़ गोइंग टू लव दिस फेस अपार्ट फ्रॉम हिज मदर। और डेरी भी ये सोचता है कि या माई फेस इज़ बर्नड, मेरी माँ बर्नड साइड पे किस नहीं करती, जो सही साइड है मुझे वहीं पे किस करती है। तो यहाँ पे जब वो घुसता है तो उसको आवाज़ आती है अंदर से, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मिस्टर लैम्ब होते हैं। मिस्टर लैम्ब बाहर आते हैं, मिस्टर लैम्ब उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उसे ऐसा लगे कि वो उसे पसंद ना करते हैं, या उसे डर रहे हैं, या उसे टेरिफाइड हैं, या उसको महसूस नहीं होने देते कि वो जो बर्न है उसके फेस वो कितना मतलब कि वो कितना अनफॉर्चुनेट है, या कितना वो स्कार कितना गंदा लग रहा है। बेसिकली वो उससे ऐसी बातें करती हैं जो कि उसको ऑप्टिमिस्ट बनाते हैं, जो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, जो उसको लाइफ जीने का मतलब सिखाते हैं। उन्हें उसे ये सिखाते हैं कि हर एक छोटी चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, और हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के, बिना लोगों की बातें सुने, हमें वो वी नीड टू लिव दैट लाइफ। और हालांकि जो ये डेरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और वो कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, और वो कहता है कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। तो इसमें आपको ये सब लिखना है। इस तरह से मिस्टर लैम्ब जो है वो इसको मोटिवेट करते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। yes, yes. जो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है वो है, मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। What are the ways in which Mr. Lamb tried to overcome this feeling in order to sustain his optimism to deal with the challenges? Optimism क्या होता है? To being positive. अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब जो है, मिस्टर लैम्ब के घर गार्डन में भी बच्चे आते हैं, है ना, बच्चे आते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, लीमी लैम्ब करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कभी भी रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली अंदर से मिस्टर लैम्ब भी लोनली हैं, वो भी अपनी लाइफ को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, मगर वो अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखते हैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। मिस्टर लैम्ब के वहाँ पे एप्पल ट्रीज़ हैं, वो क्रैब एप्पल्स को निकालते हैं, और क्रैब एप्पल्स किस लिए काम आते हैं? जली बनाने के लिए। और मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को भी इनवाइट करते हैं, वो कहते हैं कि तुम भी आओ, हम दोनों मिलके यहाँ पे क्रैब एप्पल्स निकालेंगे। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे गार्डन में बैठ के मैं भगवान की सारी क्रिएशंस को देखता हूँ कि हमारे आसपास कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, कितने फ्रूट्स हैं, कितने ग्रास हैं, कितने वीड्स हैं। हो सकता है लोग जो हैं वो ग्रास और वीड में डिफ्रेंशिएट करते हों, मगर मैं हर एक ब्यूटी से इम्प्रेस्ड हूँ। जो ग्रास है वो अपनी जगह ब्यूटीफाई है, और जो वीड है वो अपनी जगह ब्यूटीफाई है। वीड क्या होती हैं? झाड़ियाँ, ठीक है। सो वो कहते हैं कि मैं कभी कभी इन क्रैब एप्पल्स को देखता हूँ, मैं स्पाइडर को देखता हूँ जो कि एक अपना वेब डिज़ाइन करता है, और सिंगल लैडर अपने वेब पे चढ़ता है, और मैं इतने बड़े बड़े जो मेरे गार्डन में सनफ्लावर्स हैं मैं उनको देखता हूँ, मैं इनको देख के खुश होता हूँ, इनकी वजह से मेरे को लाइफ में पॉजिटिविटी मिलती है। और कहते हैं कि नाउ यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम यहाँ पे कभी भी आना चाहो तुम आ सकते हो। वो डेरी को हीव्स के बारे में बताते हैं। हीव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, हीव ऑफ बीव।
और कहते हैं कि जब ये सिंग करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं सन में बैठता हूँ, मैं अपनी लाइफ से डार्कनेस को रिमूव करता हूँ। तो ये सब चीज़ों में इंडल्ज होके वो अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज्म को सस्टेन कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? Yes. So section C is now being discussed. Do you have any problem in section C? No, sir. No. So we are moving towards section D. ठीक है? Again, keep this thing in mind. The PDF has reference answers. You need to read the chapters thoroughly and you need to write the answers in your own word using your own creativity. ठीक है? Okay. You need the service of a tutor for teaching your younger sister who is reading in class 9th. Write classified advertisement for the same to be published in a local newspaper. अब बेटा there are two type of hiring advertisements. ठीक है? एक होता है situation vacant और एक होता है situation wanted. Many of you are having confusion कि सर situation vacant कौन सा होता है और situation wanted कौन सा होता है. देखो बेटा, जब हम पर्सनल सर्विस लेते हैं, ठीक है, हमें घर पे प्लम्बर चाहिए, हमें घर पे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मुझे अपनी छोटी बहन के लिए आई नीड ए ट्यूटर, होम ट्यूटर, तो आई नीड ए डांस टीचर फॉर माई ब्रदर और सिस्टर इन माई होम, इट्स अ पर्सनल सर्विस, तो उसकी हेडिंग वांटेड आती है. फर्स्ट सिनारियो क्या आती है? वांटेड आती है. सेकेंड सिनारियो, मैंने MBA किया है, मुझे नौकरी चाहिए एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसकी हेडिंग भी सिचुएशन वांटेड आती है. क्लियर? अब जब हमें पर्सनल सर्विस के लिए कोई पर्सन चाहिए, ठीक है, अब मुझे होम ट्यूटर चाहिए तो मैं उसको सैलरी ऑफर करूंगा. ध्यान से सुनना. अब एज ए इंडिविजुअल मुझे नौकरी चाहिए तो मैं सैलरी एक्सपेक्ट करूंगा. क्लियर है? सो दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स बट इट रियली हेल्प्स यू टू फेच फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है बच्चे? Always start wanted advertisement with wanted only. Clear है? अब now second type of advertisement is situation vacant. अब situation vacant कहाँ यूज होता है बेटा? It is being used where you require someone for the organization. ठीक है? जो भी कमर्शियल यूनिट्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे अपने स्कूल में इंग्लिश टीचर चाहिए, मैं रेडिसन होटल में GM हूँ, मुझे सेल्स मैनेजर चाहिए, मैं मारुति सुजुकी जैमकैश में टीम मैनेजर हूँ, मुझे एसोसिएट चाहिए, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट की हेडिंग आती है सिचुएशन वेकेंट. सिचुएशन वेकेंट मींस कमर्शियल जब आपको हायरिंग करनी है, वांटेड जब आपको पर्सनल हायरिंग करनी है, एंड सेकंड सिनेरियो वांटेड जब एज ए इंडिविजुअल मुझे नौकरी चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेड, जब नौकरी देनी है तो सैलरी ऑफर. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके. सो अगला इसमें जो और का क्वेश्चन है, इट सेज यू आर सेलिब्रेटिंग योर 18th बर्थडे नेक्स्ट वीक, राइट एन इन्विटेशन टू योर बेस्टी फॉर ए ट्रीट एट योर होम ऑन दिस ओकेजन. सो आपका 18th बर्थडे है, आप नेक्स्ट वीक उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको एक इन्विटेशन देना है. दिस इज पर्सनल इन्विटेशन जो आप अपनी बेस्टी को देंगे ताकि वो इस ओकेजन को सेलिब्रेट करें. ओके, वन मोर थिंग बेटा, एडवर्टीजमेंट बॉक्स में आती हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज pencil. Moreover, in English paper you are going to draw everything with the help of a blue pen only. Pencils are prohibited. Don't even think of taking pencils along. Clear है बेटा? तो ये पर्सनल इन्विटेशन जो है ये भी बॉक्स में आएगा. सबसे पहले रिसीवर का एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन. अब पर्सनल है तो डियर से आप स्टार्ट करेंगे, इसकी बॉडी लिखेंगे, लीव अ लाइन, योर लविंगली राम, खत्म. I have one advice for you for this particular question. See, you have been doing advertisements from last 2 years, so I suggest you to go with advertisements only. Clear है बेटा? Else it's your choice. Okay, but my suggestion is that you must go with the advertisement only. Okay. अब लेटर आता है. लेटर क्या है? यू आर द स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द वेंडर एंड द रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल आउटसाइड योर स्कूल गेट. राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर city complaining about the same and to resolve the issue.
अब लेटर कौन भेज रहा है? स्टूडेंट सेक्रेटरी भेज रहा है ना बेटा। जब डेजिग्नेशन होती हैं तो सबसे पहले डेजिग्नेशन आती है, दी स्टूडेंट सेक्रेटरी। कहाँ का है? स्कूल का नाम लिखो, सिटी का नाम लिखो, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन। रिसीवर कौन है? मेयर है, द मेयर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कहाँ पे है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? जम्मू में। लीव अ लाइन, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट जो है इट शुड नॉट एक्सीड 4 वर्ड्स, मैक्सिमम 4 वर्ड्स में आप वाइंड अप करोगे इसको, ठीक है? ओके, रिस्पेक्टेड सर से शुरू करोगे। ऑब्वियसली मेयर जो है इट्स ए बिग डेजिग्नेशन, तो आप इसको रिस्पेक्टेड सर से शुरू करेंगे। आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन, लीव अ लाइन। बेटा योर फॉर्मल लेटर नेवर स्टार्ट्स विद पर्सनल प्रनाउन, तो इसको कैसे स्टार्ट करोगे? थ्रू दिस लेटर। क्लियर है? द लेटर विल बी ऑफ 120 to 150 वर्ड्स। आप इसको 2 पैराग्राफ्स मिनिमम, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स में वाइंड अप कर सकते हैं। आफ्टर दिस यू नीड टू लीव अ लाइन, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर, या थैंकिंग यू इतना भी लिख सकते हो। लीव अ लाइन, योर सिंसियरली नेम, खत्म। बट वन थिंग इज बीइंग मिस्ड, यहाँ पे आप इसकी डेजिग्नेशन लिखोगे, ठीक है बच्चे? क्लियर है? ओके, इसके और यहाँ डेजिग्नेशन लिखी हुई है बेटा, सॉरी आई मिस दैट, ठीक है? स्टूडेंट सेक्रेटरी, ये नेम के नीचे आएगा, ठीक है? दिस इज ए कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट, तो ये गलती से नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है बेटा? ओके, so in our question there is a question, write a letter to the editor of a daily newspaper requesting to publish your views and suggestions about the unhealthy trend of eating junk food among the students, highlighting the hazards of the same। तो आपको लेटर लिखना है ये किसको? एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को। तो आपका एड्रेस, ठीक है? लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, दी एडिटर। एडिटर किसका है? न्यूज़पेपर का नाम, सिटी, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट नॉट मोर देन 4 वर्ड्स, लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन, लीव अ लाइन। अब बेटा जब भी लेटर टू द एडिटर होती है उसकी स्पेसिफिक लाइंस होती हैं स्टार्ट करने के लिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या थ्रू द रिप्यूटेड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है? आई वुड लाइक टू ग्रैब, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगेन यू नीड टू कवर 120 to 150। बेटा एक चीज ना हम सभी इसमें वी आर डूइंग रॉन्गली, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिक्वेस्टिंग एडिटर टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। एडिटर इज नो वन टू टेक द एक्शन, ही इज द वन हु विल बी एक्टिंग एज अ मीडियम। At the end you will be requesting him to publish the issue in the newspaper so that concerned authority can be attracted and they must take relevant action against the highlighted problem, ठीक है? जाम लग गया इसमें, एडिटर क्या करेगा बेचारा, है ना? अब मलेरिया फैल गया, उसमें एडिटर क्या करेगा? अब मलेरिया फैला है तो वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा ना बेटा। जाम लग गया वहां पे एसएसपी करेगा। सो एडिटर इज द मीडियम, ही इज नॉट द अथॉरिटी। प्लीज कीप दिस थिंग इन द माइंड। क्लियर है बेटा जी? ओके, यस सर। रिज्यूम राइटिंग ध्यान से देखना है ना, मेनी ऑफ यू आर मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एरर इन रिज्यूम राइटिंग। तो रिज्यूम राइटिंग बेटा इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको 2+4 में डिवाइड किया है। 2 इज फॉर द कवर लेटर, 4 इज फॉर द रिज्यूम, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करना है बेटा, यू आर गोइंग टू राइट सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर एड्रेस, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज टू बी वेरी टेक्निकल इन वर्ड्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर ही लिखना है, ठीक है? लीव अ लाइन, सर, लीव अ लाइन एंड स्टार्ट विद द थिंग्स, ठीक है? यू नीड टू क्रैम द कवर लेटर। अब क्रैमिंग बेटा, अब इसमें पोस्ट भी क्रैम मत करना। एज पर द क्वेश्चन यू नीड टू चेंज द पोस्ट, एज पर द क्वेश्चन यू नीड टू चेंज द डेट, एज पर द क्वेश्चन you need to change the medium source of the advertisement। समझ गए बेटा सभी? इसको वाइंड अप करके लीव अ लाइन, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, लीव अ लाइन, योर सिंसियरली नेम। अब बेटा गलती कहाँ पे हो रही है? गलती हो रही है रिज्यूम में। आप इसके बाद रिज्यूम लिखेंगे, एनक्लोज बायोडाटा लिखेंगे। देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू विल कीप इन योर माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग रिज्यूम। दिस इज पीर। थर्सडे पीर बाबा के जाते हो,
मे बी, मे नॉट बी, राइट, मे बी, मे नॉट बी, राइट. सो पीर बाबा से पीर याद रखो. अब पीर क्या है बेटा? पी है पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स. ठीक है, पर्सनल डिटेल लिखने के बाद लीव अ लाइन. अब ई क्या है? एजुकेशनल डिटेल्स. एजुकेशनल डिटेल लिखने के बाद लीव अ लाइन. अब ई क्या है? एक्सपीरियंस, लीव अ लाइन. और आर क्या है? रेफरेंस. अब पर्सनल डिटेल कहां से निकलेगी बेटा? एवरीवन हैज आधार कार्ड. आधार कार्ड सबका बना है. तो आधार कार्ड में क्या दिया होता है? नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस. ठीक है. उसके बाद अपना फोन नंबर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज और नेशनलिटी. अगर एज नहीं लिखोगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है डेट ऑफ बर्थ से. क्लियर है बच्चे? लीव अ लाइन. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? हमारा क्वेश्चन कहता है यू केम अक्रॉस ए जॉब एडवर्टीजमेंट बाय द चेयरमैन JKSSB फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर. अब यहाँ पे पोस्ट क्या है? इंग्लिश टीचर. इंग्लिश टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर्स मास्टर्स किसमें? इंग्लिश. वेरी गुड. सो सिंपल BA और MA इंग्लिश. अब देयर इज ए मैंडेटरी प्रोफेशनल डिग्री जो टीचर्स करते हैं, B.Ed, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B.Ed, दैट्स इट. अब यहाँ पे क्वेश्चन में HR की जॉब निकली, HR मैनेजर चाहिए. तो HR मैनेजर के लिए रेलिवेंट क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? MBA आजकल हर एक स्ट्रीम में हो रहा है. ठीक है, BA डालो, नीचे MBA HR. सेल्स मैनेजर चाहिए, MBA सेल्स. परचेज मैनेजर चाहिए, MBA परचेज. फाइनेंस मैनेजर चाहिए, MBA इन फाइनेंस. क्वालिटी मैनेजर चाहिए, MBA इन क्वालिटी. शेफ चाहिए, MBA इन होटल मैनेजमेंट. फ्रंट ऑफिस मैनेजर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, अगेन MBA इन होटल मैनेजमेंट. एयर होस्टेस चाहिए, डिप्लोमा इन फ्रैंकफिन. अगर आप एयर होस्टेस में भी MBA इन होटल मैनेजमेंट लिखोगे तब भी सही है. क्लियर है बच्चे? यस. ओके. लीव अ लाइन. ठीक है. अब मैंने क्या बताया? एजुकेशन डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल होगी, एक्सपीरियंस. सो एक्सपीरियंस. अब आपको टीचर बनना है. एक बात बताओ, यू वांट टू बी ए टीचर एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ शेफ. So will it be possible for you to be a teacher? No, sir. No. So you have to give relevant experience. Experience 7 years as English teacher in Jack Public School. अब आपको हेड शेफ बनना है तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना. फ्रेशर को थोड़ी ना बनाएंगे बेटा. आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Hobbies, tracking and reading. Strength, good communication skill, computer literature, proficiency in English, Hindi and German. खत्म. क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. ओके. अब लीव अ लाइन, गो विद रेफरेंसेस. नेम एंड द एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस. क्या लिखेंगे? इमेजिनरी नेम मिस्टर विजय माथुर, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल, स्कूल नेम इमेजिनरी, और ये स्कूल कहाँ पे? दिल्ली. क्लियर है बच्चे? 2 रेफरेंस देनी है. मिस्टर सतीश ओहरी, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़. लीव अ लाइन, गिव अ डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे? आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. और बेटा ये जो मैंने लीव अ लाइन लिखा है ये खाली आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे आपको लाइन छोड़ना है. प्लीज पेपर में मत लिख के आना लीव अ लाइन, लीव अ लाइन, लीव अ लाइन. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी Yes, sir. ठीक है. आफ्टर गिवन डिक्लेरेशन लीव अ लाइन, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर. सिग्नेचर में ऐसे स्पेसिफाई कर देते हैं. क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ वी आर गोइंग. बेटा रिज्यूमे में किसी को कोई प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी ट्रबल, एनी डाउट इन रिज्यूमे? No, sir. No, sir. Very good, very nice. So we are going to discuss another question. Another question says write a newspaper article or a morning speech on any of the following. तो आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? सबसे पहले हेडिंग आती है सेंटर में, फॉलोड बाय बायलाइन. अब नाम तो नहीं दिया बट यू हैव टू गो विद इमेजिनरी नेम. अब बॉडी का फॉर्मेट क्या कहता है बेटा? बॉडी नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स. पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3.
The paragraph 1 must be drafted for 60 words, paragraph 2 120 words, and paragraph 3 again 60 to 70 word. Your 200 word limit will fall in this. अब paragraph 1 में क्या करना है बेटा? You need to give introduction of the topic. Paragraph 2 में क्या करना है? This is the paragraph which you needs to explain each and every point of the topic. ठीक है? And as per the question, अगर preventive measures लिखे हैं, wind up your writing with preventive measures or a very good conclusion. Clear है बच्चे? Yes, sir. Okay. Yes. इसके और में हमें स्पीच लिखनी थी. स्पीच में क्या है बेटा? योर हेडिंग मस्ट बी देयर इन द सेंटर फॉलोड बाय द ओपनिंग लाइन. अब ओपनिंग लाइन क्या कहती है? गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे I announce your name, stand before you all to highlight the importance of cleanliness. Again, go with the same formula. Paragraph 1, leave a line. Paragraph 2, leave a line. Paragraph 3, introduction, explanation, conclusion. Clear है बेटा जी? Yes, Yes, sir. sir. Very nice. So nice of you. I'm having great people along with me. Okay, editing. अब एडिटिंग में ए पैराग्राफ वुड बी गिवन. अब एडिटिंग करने का सही तरीका क्या है बेटा? यू नीड टू री राइट दिस पैराग्राफ. यू नीड टू रिप्लेस, ये गलत वर्ड है ना, स्टॉप. यू नीड टू रिप्लेस रॉन्ग वर्ड विद द राइट फॉर्म ऑफ वर्ड एंड यू नीड टू अंडरलाइन. क्लियर? Yes, sir. वेरी नाइस. सो इज देयर एनी प्रॉब्लम विद सेक्शन सी? No, sir. Sir. Let's move to section A. Section A में बेटा first A would be based on your node making. अब node making में एक्सक्यूज मी सर. yes बेटा excused. सर स्टोरी राइटिंग वगैरह आएंगे कुछ? Story writing तो नहीं आती बेटा. सर वो एक बारी पता नहीं बोला था कि पेपर में आई टॉपिक, कोई टॉपिक पे लिखना था. बेटा story writing नहीं होगी, person narrative होगा. ओके, पर्सन नैरेटिव क्या होता है बेटा? लेट मी हेल्प यू विद पर्सन नैरेटिव. आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है इन 200 to 250 वर्ड्स. और पर्सन नैरेटिव का जो फॉर्मेट है उसमें आप हेडिंग को सेंटर में लिखते हैं एंड उसके बाद एक ही पैराग्राफ में स्ट्रेच करते हैं, बट यू हैव टू यूज स्पेसिफिकली पास्ट टेंस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हेनेवर यू आर टेलिंग समथिंग दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ, it has to be there in past tense. You're not going to divide the body into 3 paragraphs. You need to stretch 200 words in a same paragraph. Clear? Okay. So beta note making में क्या है? Note making में you must be very clear with the numbering format. इसमें हम सबसे पहले टाइटल देते हैं. ठीक है? आपका जो नोट मेकिंग का टाइटल है, it should not match with the title of summary. First point. सेकेंड, आप 4 हेडिंग्स लिखते हैं, 1 2 3 4 मिनिमम. ठीक है? उसके बाद आप मिनिमम 4 या 3 सब हेडिंग्स में वाइंड अप करते हैं. इसकी नंबरिंग आती है 1.1 1.2 1.3. यू नीड टू मेक एब्रीवेशंस. आई सजेस्ट यू टू मेक इन अ बॉक्स, क्योंकि जब हम बॉक्स में एब्रीवेशन लिखते हैं अलॉन्ग विद द की वर्ड्स, इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. क्लियर? Else you, if you don't have time, a box मत बनाओ. मगर if you really want to get good marks, as per me, this is my personal suggestion to you all, आप अपना पेपर ना ऑर्गेनाइज करो. ऑर्गेनाइज करने के लिए you need to make a key to abbreviation box, जहाँ पे आप एक keywords और abbreviations लिखोगे. क्लियर है बेटा? Your Yes, Yes. sir. yes बेटा. Yes. Okay. Your summary must be of 80 words. It must be written in present tense, right? It must be there with the title, and title of summary must not match with the title of note making. Clear है बच्चे? Yes, sir. Okay. The second question would be the comprehension. A paragraph would be given to you. You need to understand the paragraph and you need to answer the question. If you have time, do write the questions. If you don't have, then please write appropriate answer number to the answer question.
आई हैव सीन मैनी आंसर शीट, आंसर सिर्फ लिखा होता है, बट for which question you are answering, it is not being mentioned. In such cases you are going to lose your marks. Is it clear? So Yes, sir. both the question will be coming for 10 marks each. Your section A is of 20 marks. So we have discussed the paper. I really want to thank you all.